آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر۔ پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ پہلی مرتبہ ووٹ کا استعمال کرنے والوں سے آئندہ لوک سبھا انتخابات میں ریکارڈ تعداد میں حق رائے دہی استعمال کرنے کی وزیر اعظم کی من کی بات پروگرام کے دوران اپیل۔ کہا، بھارت کو اپنے پرجوش اور توانائی سے بھرپور نوجوانوں پر ہے فخر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے ورچوئل طریقے سے افتتاح کیے گئے اور سنگ بنیاد رکھے گئے زائد از 48,000 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں میں جموں کشمیر کے کئی پروجیکٹ بھی شامل۔ سال 2028-29 تک ملک میں دفاعی ساز و سامان کی سالانہ پیداوار 3 لاکھ کروڑ روپے تک پہنچنے کا امکان، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ۔ اور گلمرگ میں کھیلو انڈیا ونٹر گیمز کا چوتھا ایڈیشن اختتام پذیر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پہلی مرتبہ ووٹ کا استعمال کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ لوک سبھا انتخابات میں ریکارڈ تعداد میں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں۔ آج آکاشوانی پر من کی بات پروگرام کے ایک اور شمارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے انتخابی کمیشن کی جانب سے میرا پہلا ووٹ دیش کے لیے مہم کا آغاز کیے جانے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو اپنے نوجوانوں پر فخر ہے جو پرجوش اور توانائی سے بھرپور ہیں۔ آئندہ مہینے کی 8 تاریخ کو خواتین کے عالمی دن کے بارے میں بولتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ یہ خصوصی دن ملک کے ترقی کے سفر میں خواتین کے تعاون کو سلام کرنے کا ایک موقع ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک خواتین کی طاقت کی بدولت ترقی کے نئے منازل طے کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں خواتین نے قدرتی طور پر کھیتی باڑی، پانی کی بچت اور صفائی ستھرائی جیسے شعبوں میں بھی اپنی قائدانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ پروگرام کے دوران وزیر اعظم نے جنگلی جانوروں کے تحفظ کے بارے میں بھی بات کی۔ 3 مارچ کو منائے جا رہے جنگلی جانوروں کے تحفظ کے عالمی دن کے حوالے سے وزیر اعظم نے کہا کہ اس سال اس دن کے موضوع میں ڈیجیٹل اختراع کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ ملک کے مختلف حصوں میں جنگلی جانوروں کے تحفظ کے لیے بڑے پیمانے پر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مواد تیار کرنے والے افراد کے اعزاز میں ملک میں شروع کیے گئے نیشنل کریٹرز ایوارڈ کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے مادری زبان کے استعمال پر زور دیتے ہوئے جموں کشمیر کے ضلع گاندربل میں رہنے والے محمد منشا کا تذکرہ کیا جو گوجری زبان کے تحفظ کے لیے گزشتہ 3 دہائیوں سے کام کر رہے ہیں۔ جموں کشمیر میں گاندربل کے محمد مانسا پچھلے 3 دشکوں سے گوجری بھاشا کو سنرکشت کرنے کے پریاسوں میں جٹے رہے ہیں۔ وہ گجر بکروال سمودائے سے آتے ہیں جو کہ ایک جنجاتیہ سمودائے ہے۔ انہیں بچپن میں پڑھائی کے لیے کٹھن پریشرم کرنا پڑا تھا۔ وہ روزانہ 20 کلومیٹر کی دوری پیدل طے کرتے تھے۔ اس طرح کی چنوتیوں کے بیچ انہوں نے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور ایسے میں ہی ان کا اپنی بھاشا کو سنرکشت کرنے کا سنکلپ دृढ़ ہوا۔ ساہتیہ خیتر میں مانسا جی کے کاریوں کا دائرہ اتنا بڑا ہے کہ اسے قریب 50 سنسکرણوں میں سہجا گیا ہے۔ ان میں کویتائیں اور لوک گیت بھی شامل ہیں۔ انہوں نے کئی کتابوں کا انواد گوجری بھاشا میں کیا ہے۔ پروگرام کے دوران وزیر اعظم نے کئی دیگر موضوعات پر بھی اظہار خیال کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج گجرات میں ملک کے سب سے طویل کیبل پل سدرشن سیتو کا افتتاح کیا۔ انہوں نے راجکوٹ میں ایک ریلی سے خطاب بھی کیا۔ اس دوران وزیر اعظم نے مختلف ریاستی اور مرکزی محکموں کے 48,000 کروڑ روپے کے زیادہ مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر اعظم نے ورچوئل طریقے سے جموں کشمیر کے لیے بھی کئی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح کیا۔ انہوں نے کپوارہ سب ضلع اسپتال میں کرٹیکل کیئر بلاک کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس سلسلے میں ٹاؤن ہال کپوارہ میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر کپوارہ آیوشی سودھان کے علاوہ بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ وزیر اعظم نے ورچوئل طریقے سے ہی ضلع اسپتال بڑگام میں بھی کرٹیکل کیئر یونٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس سلسلے میں بڑگام میں منعقدہ تقریب پر ڈپٹی کمشنر اکشے لابرو اور ڈی ڈی سی چیئرمین نذیر احمد خان مہمان خصوصیت کی حیثیت سے موجود رہے، جبکہ محکمہ صحت کے افسران اور دیگر ضلعی افسران نے بھی اس تقریب میں شرکت کی۔ اسپتال میں یونٹ قائم ہونے سے ضلع کے مریضوں کو کافی راحت ملے گی۔
वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से वर्चुअल तरीके से संग बुनियाद रखे गए प्रोजेक्टों में जिला अस्पताल पुलवामा का 50 बिस्तरों वाला क्रिटिकल केयर यूनिट भी शामिल है। इस सिलसिले में पुलवामा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़यूम, डीडीसी चेयरपर्सन अब्दुल बारी अंद्राबी और कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इस यूनिट के कायम होने से अस्पताल के कामकाज में काफी बेहतरी आने की तवक्को है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जिला अस्पताल कुलगाम के लिए भी ऐसी ही एक यूनिट का संग बुनियाद रखा। इस यूनिट पर तकरीबन 24 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और इसके मुकम्मल होने से जिले के मरीजों के लिए दस्तयाब तिबी सहूलियात में काफ़ी बेहतरी आएगी। इस सिलसिले में मुनक्किद तकरीब पर डीडीसी चेयरपर्सन कुलगाम मोहम्मद अफजल परे, एडीसी कुलगाम वक़ार अहमद गिरी और दीगर कई अफसरान भी मौजूद थे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने जीएमसी बारामूला में भी 50 बिस्तरों वाली क्रिटिकल केयर ब्लॉक का संग बुनियाद रखा। इस सिलसिले में जीएमसी बारामूला में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा और लोगों ने शिरकत की। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा ने अमर सिंह क्लब श्रीनगर में पहले युवती सम्मेलन का एहतमाम किया, जिसमें सीनियर बीजेपी लीडर और जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी, बीजेपी युवा मोर्चा की कौमी नायब सदर अर्पिता अपराजिता और मोर्चे के कौमी मीडिया सेक्रेटरी अमनदीप सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाली लड़कियों की इज्जत अफजाई की गई। शब बारात की मुक़द्दस तकरीब आज अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। इस सिलसिले में वादी भर में मुख्तलिफ ज़ियारतगाहों, खानकाहों, बुक़ाजात और मसाजिद में रात भर खत्मतुल मौज़मात, दुरूद अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार की मजालिस का एहतमाम किया जाएगा, जबकि उलमाए किराम और आइमा हज़रात शब बारात के मुख्तलिफ गोशों को भी उजागर करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने शब बारात की तकरीब सईद पर आलम इस्लाम और खुसूसी तौर पर जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इस मुक़द्दस और बाबरकत शब में अल्लाह के दरबार में सरबसजूद होकर आलम इंसानियत की बका, जम्मू कश्मीर के लोगों की खुशहाली और यहाँ अमन अमान के लिए दुआ करें। पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने इस बाबरकत शब के मौके पर अल्लाह के बंदों को मुबारकबाद पेश की है। जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आज़म मुफ्ती नासिरुल इस्लाम ने इस मुक़द्दस मौके पर उम्मत मुस्लिमा बिल उमूम और जम्मू कश्मीर के लोगों को बिलखुसूस मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने कहा है कि पाक शब हमारे लिए एक मौका है कि हम अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन ने भी शब बारात के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बानीपुरा जिले का दौरा करके वहां मुतल्लिका अफसरान की एक मीटिंग की सदारत करते हुए हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्टों की पेशरफ्त और मुख्तलिफ मरकजी मावनत वाली स्कीमों से जुड़े अमूर का जायजा लिया। इस मौके पर डायरेक्टर मौसूफ ने कहा कि HADP के तहत प्रोजेक्टों को इस तरह तरतीब दिया गया है कि छोटे और मुतवस्सित किसान भी अपने आमदन बख्श ज़राई यूनिट कायम कर सकें। उन्होंने HADP के तहत प्रोजेक्टों और मुख्तलिफ मरकजी मुआवनत वाली स्कीमों के तहत दस्तयाब रकूमात के तेजी के साथ मुनसिफाना इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि रकूमात के तसर्रुफ के दौरान हर सतह पर शफाफियत और जवाबदेही बरकरार रखना अज हद जरूरी है। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान से कहा कि वो जिलाई इंतजामिया के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करके मुख्तलिफ स्कीमों की मौसर अमलावरी तयशुदा दौरानिये में यकीनी बनाएं। बाद में उन्होंने SM फार्म सुंबल में सब्जियों की पनीरी तकसीम करने के अमल का भी आगाज किया। वादी कश्मीर का मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ रेल राब्ता अनकरीब मुतवक्का है, जिसको लेकर न सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि कलीदी अहमियत की मेवा सन्नत से जुड़े अफराद भी काफ़ी पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि ये रेल राब्ता एक संगी मील की हैसियत रखता है और ये राब्ता कायम होने से यहाँ के मेवे को बाहर भेजने में काफ़ी आसानी होगी और यहाँ की मेवा सन्नत को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेल राब्ता कायम होने के बाद मेवा को न सिर्फ कम वक्त में बाहर की मंडियों तक पहुँचाया जा सकता है, बल्कि मेवा को दरामद करने पर आने वाले खर्चे में भी कमी आएगी। मरकजी सरकार के बेहद मशकूर है जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कश्मीर को जम्मू से मिलाने का, जो रेलवे के जरिए कश्मीर को जम्मू से मिलाया गया है। इसके लिए हम मरकजी सरकार के बेहद मशकूर है। जो रेलवे इंतजामिया की अगर हम बात करेंगे, जो अभी कुछ बचा खुचा कुछ काम उसमें बाकी है, जो चाहे हम खारी की बात करेंगे, खारी से जम्मू तक जो ट्रैक जो बनने जा रहा है, हमारी मरकजी सरकार से ये गुजारिश रहेगी कि
उस ट्रैक को भी जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि यहाँ के हार्टिकल्चर, ताकि यहाँ की जो शोबे बागवानी के साथ जो लोग हैं उसको बूस्ट मिल सके और वो तरक्की की राह पर गामजन हो सके। इससे बहुत फायदा मिलेगा कश्मीर को। इससे हमारा टूरिज्म भी बढ़ जाएगा, इससे हमारे हार्टिकल्चर में इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी, एग्रीकल्चर में इकोनॉमी ग्रो हो जाएगी, आर पार का ट्रेड हो जाएगा, डिफरेंट स्टेट्स से हमारा माल यहाँ जाएगा, यहाँ की ड्राई फ्रूट्स वहाँ पे जाएगा, केसर जाएगा, एप्पल जाएंगे, वहाँ से बहुत सारे किस्म के फ्रूट्स आएंगे। तो मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है मोदी जी का। वादी कश्मीर जहां आलमी सतह पर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, वहीं यहाँ की दस्तकारियां भी अपनी मिसाल आप हैं। इस खिते अर्ज में अरसे दराज से दीगर दस्तकारियों के साथ साथ लद्दाख में पाई जाने वाली बकरियों के ऊन की कटाई भी की जा रही है। अगरचे इस दस्तकारी के साथ आज के दौर में कम लोग वाबस्ता हैं, ताहम इसके आहियाई नौ के लिए कई कोशिशें हो रही हैं। पुराने शहर के ईदगाह इलाके में कई ख्वातीन अब ऊन की कटाई के लिए नए तर्ज के चरखे इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी बदौलत उनको न सिर्फ राहत मिल रही है बल्कि पैदावार में भी इजाफा हो रहा है। ब्रोट बेहान हुत नींदरस पे बिहित सन नींदर तथ सान माज बेन बेहान तिम ग वथनस बेहनस मज तकलीफ, तिम हेकान पूर काम कर तथ पे कह। अलबत्ता यन पे यह मॉडर्न चरखा आव अत पे आई वारिया सहूलियत, कतनस मज आई, वथनस बेहनस मज आई। अगर बच्चे ब्रोट कुन यी तमिस सह हेकि गिंदित कर पाने माज सत। मुझे 1 महीना हुआ है यहाँ पे और मैंने ट्रेनिंग ली अच्छे से। मैडम ने मुझे अच्छे से ट्रेन किया, इस वजह से मैं बहुत खुश हूँ। अहरबल कुलगाम में जिला इंतजामिया, महकमे सियाहत, अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी और फॉरेस्ट डिवीजन कुलगाम के बाहमी इश्तराक से मुनक़िदा 2 रोज़ा विंटर कार्निवल आज एक अहम तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस कार्निवल में बड़ी तादाद में खेलों से उन्स रखने वाले अशखास और कोपैमाओं समेत जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने शिरकत की। नौजवानों को मुसब्बत सरगर्मियों के साथ मशगूल रखने की अपनी पहल को जारी रखते हुए फौज ने गुलगाम कुपवारा में बच्चों के लिए स्नो गेम्स का एहतमाम किया। इन स्नो गेम्स के तहत 50 से 60 लड़कों और लड़कियों ने स्नो रेस, टग ऑफ वॉर और बर्फ पर नक्काशी समेत कई दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इन सरगर्मियों में हिस्सा लेने के बाद शरका ने काफी खुशी का इजहार किया। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि साल 2028-29 तक दिफाई साजो सामान की सालाना पैदावार 3 लाख करोड़ रुपए तक, जबकि दिफाई साजो सामान बरामदात के 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाने का इम्कान है। वज़ीर दिफा ने नई दिल्ली में एक निजी मीडिया इदारे के जरिए मुनक़िदा दिफा से मुतल्लिक सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के तवील मुद्दती अहदाफ पर हुकूमत की तवज्जो मरकूज करने का नतीजा है। सयाती मकाम गुलमर्ग में खेलो इंडिया का चौथा एडिशन आज इख्तिताम पजीर हुआ। इन विंटर गेम्स में मुल्क की 24 रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के तकरीबन 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फौजी खिलाड़ियों ने इन मुकाबलों में सबसे ज्यादा सोने के तमगे जीतकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। कर्नाटक ने 9 सोने के तमगे जीतकर दूसरा मकाम हासिल किया, जबकि महाराष्ट्र 7 सोने के तमगे के साथ तीसरे नंबर पर रहा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हो जाता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।